Hello everyone, welcome back again. Today we'll be going through the third session, depth and enrichment of essays. This will be relatively a short session. The last session was slightly longer than expected, but believe me, that was one of the most important sessions of in the art of mastering the essay writing. So moving forward, a quick recap of what we did earlier. We had already discussed the basics of an essay in the first session, why an essay is more important, why it is one of the most neglected, yet it is one of the most scoring areas in any public service commission exams that we give. The three pillars of an essay are again how to write a good introduction, a good body, and a conclusion. What all these three pillars require, what all points should we remember while we are writing our introduction, or how we are framing a body, how we are concluding our essay. So that all have been discussed in the two sessions that we have taken earlier. So I request anyone who is watching this session, please go and watch the first and second session first, because ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये लिंक्ड हैं. अगर हम इसको एक फ्लो में नहीं देखेंगे तो we might not get the entire benefit of this sessions. सो वाई डेप्थ एंड एनरिचमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है. अभी हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि हाउ टू मूव फ्रॉम अ जनरलिस्ट टू अ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड अ बेटर रिटन एसे. तो उसके लिए हमें ऐसे में डेप्थ और एनरिचमेंट करना पड़ेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एवरेज एसे का स्कोर जो है, व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, इट इज समवेयर अराउंड 100 and 110, maybe 115. This is something when you are writing a decent essay, you will get it. A rich essay, slightly on the better side, will, if you have a decent depth and enrichment, will help you score about 125 to 145 marks. And an exceptional essay wherein you have a good articulation skills, wherein you have good presentation, where you have sufficient depth, wherein you were able to create that wow factor. हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसे लिखो कि उसको पढ़ के सामने वाले को लगे वाओ, या सामने वाला या जो पढ़ने वाला है उसको लगे अच्छा लिखा है. तो इफ ही इज एबल टू फील गुड, you will get very good marks. Okay. So the difference between these three is the depth, diversity and delight. So depth, diversity we can talk, ये डेप्थ और एनरिचमेंट की पार्ट है. ये डाइवर्सिटी एज इन हाउ मेनी डायमेंशंस या हाउ मेनी तरीके से हम सोच पा रहे हैं. एंड डिलाइट अगेन जो हम वाव फैक्टर की बात कर रहे थे. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री टॉपिक्स. Idea is to impress the reader through better articulation, better content, and move from being a generalist to a expert. हमें जो एक generalist या एक जो basic ऐसे हम जो लिखते थे स्कूल में या बाकी लाइफ में जो लिखते रहे, या कोई भी हमारे एस्पिरेंट्स जो बेसिक ऐसे लिख रहे हैं, उसको हम कैसे एक बेटर, वेल फ्रेम्ड, बेटर आर्टिकुलेटेड और इम्प्रेसिव ऐसे बनाए. एक ऐसा ऐसे जिसको पढ़ने पे सामने वाले को अच्छा लगे. मूविंग फॉरवर्ड, sorry, so we have to hook upon the reader or examiner's interest, make our write-up stand out. Don't be a generalist. So that is what we were talking about entire thing में कि depth and enrichment में क्या है. तो ट्राई हम कैसे अब डेप्थ और एनरिचमेंट कैसे करेंगे ऐसे को. वी हैव टू ट्राई टू लिंक इट विद इंडियन एथोस, एंशिएंट विजडम, कॉन्स्टिट्यूशन. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप वो कर सकते हैं. यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ेंगे, केस स्टडी यूज करने पड़ेंगे. आपने लिखा कि भाई फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डेवलपमेंटल स्टोरी में ये प्रॉब्लम्स हैं, but you have to justify it with facts, figures, stories और case studies, examples. आपको ये जब तक आप ये 2-3 लाइन की ये case study और example नहीं लिखेंगे तब तक आपको उस चीज का बेस्ट इम्पैक्ट नहीं मिलेगा. Use some data, facts and figures to support your content. Good.
ट्राई टाई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। आपको हर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो आप यूज कर रहे हैं उसको किसी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ एक बार उसको अटैच करने की टाई करना पड़ेगा, तभी आपका वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इतना मतलब अच्छे से यूज आ पाएगा। यूज ऑफ थिंकर्स एंड लीडर्स। बहुत सारे हमारे यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं या स्टेट सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एथिक्स के पार्ट में या बाकी फिलॉसफी के पार्ट में या इन जनरल जनरल स्टडीज़ में हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स और ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। वी कैनॉट गो थ्रू ऑल, बट आई विल सजेस्ट कि 8, 10, 12 आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे किस चीज़ को कौन से थिंकर को यूटिलाइज करके या कोट कर सकते हैं, उससे आपका इंप्रेशन बढ़ता है ऐसे का। तो मैंने इसमें मैंने इस वर्कबुक में मैंने इस सेशन में मैंने आपको एक 2 स्लाइड्स ऐसे प्रिपेयर करे हैं इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के, जो आपको यूज़फुल रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल गांधी, टैगोर, विवेकानंद, चाणक्य, अंबेडकर, कलाम, सोक्रेट्स एंड मैनी अदर्स, प्लेटो, बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स रहे हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। इंक्लूड कोट्स अप्रोप्रिएटली। सो कोट्स सब बोलते हैं एज वी हैव हर्ड कि भाई कोट्स आपको यूज करने पड़ेंगे ऐसे में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। तो लाइक आई सेड इन द लास्ट सेशन, सिर्फ कोट्स यूज करना मे नॉट बी दैट इम्पैक्टफुल अगर आपने उसको सही से यूज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोट को कोई भी कोट आपने लिखा और आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ अलग स्टोरी शुरू कर दी है या उस चीज को आपने लिंक नहीं किया है, तो उस कोट का इम्पैक्ट मिनिमल हो जाता है। कोट आपने अगर जनरलिस्ट कोट लिख दिया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करके आपने कर दिया है, तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी बिग डिफरेंस इन द आई ऑफ एन एग्जामिनर। एग्जामिनर उससे इंप्रेस नहीं होगा। हमारा आइडिया क्या है, हमको जो भी हम एक एक वर्ड लिख रहे हैं, दैट वर्ड शुड मीन बिजनेस। हर वर्ड, हर सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं, आइडिया इज दैट द एग्जामिनर विल रीड इट एंड लाइक इट। हमें उसको मन को अच्छा फील कराना है हर चीज जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। अवॉइड ओवर यूजिंग कोट्स एंड डेटा। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है। किसी किसी कॉपी को जो मैंने इवेल्युएट किया है उसमें मैंने देखा है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों ने एक ऐसे में 20-20, 22-22, 15-15, 20-20 कोड जो उनको बाय हार्ट थे, वो समहाउ हर मतलब हर पैराग्राफ से पहले या उसको इंक्लूड करने की कोशिश की। दैट इज नॉट राइट। आपको जुडिशियसली यूज करना है। आई सजेस्ट कि 2 से 4, बट 5 तक आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको अवॉइड करना है। अगेन इट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू हैव लिंक्ड अप। कुछ ये थिंकर्स के नाम है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, इनकी की आइडिया और थीम क्या है और इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का आप अहिंसा सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, दैट इज वेल्दी मैनेजिंग प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, स्वराज सेल्फ रूल पे, सेल्फ रिलेवेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एथिकल प्रोटेस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉरल लीडरशिप। तो हर थिंकर का मैंने उनका क्या फिलॉसफी रही है मेन, सॉरी, क्या उनकी फिलॉसफी रही है मेन, और उसको हम कैसे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका रेलेवेंस है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। हम सभी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको लिखा है कि जैसे एप्लीकेबल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूजफुल फॉर द टॉपिक्स ऑफ यूथ, स्वामी विवेकानंद, सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, मेकिंग एजुकेशन, spiritual nationalism, harmony of religions, useful on the topic of youth, nation building। तो ऐसे करके मैंने ये 5 कोट आपको दिए हैं। इसमें से आपको सब याद करने की जरूरत नहीं, बट बेटर रहेगा कि आप इस स्लाइड को ले। इस स्लाइड से आप बेसिकली आपको हेल्प मिलेगा कि इन टॉपिक्स को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये यूटिलाइज करने में बहुत इजी रह जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही सिमिलरली मैंने वेस्टर्न थिंकर्स के भी 6 वेस्टर्न थिंकर्स जो मोस्ट यूज्ड हैं, तो प्लेटो, अरिस्टोटल, इमानुएल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, सोक्रेट्स और जॉन रॉल्स, इनको यूज़ किया है। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा प्लेटो का आइडियल स्टेट फिलोसफर, किंग, रूल बाय वाइज, जस्टिस एज अ वर्च्यू, एप्लीकेबल टू गवर्नेंस मॉडल, कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, मैंने वो भी निकाल के लाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको यूज़ करने को मतलब आपको पता हो कि यहाँ पे किस चीज़ को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। एनरिचमेंट टेक्निक, विल मूव फॉरवर्ड।
बैलेंस आइडियलिज्म विद रियलिज्म, हमें बहुत ज़्यादा आइडियल बनने की कोशिश नहीं है करने, हमें ऐसा नहीं लिखना है कि हम सब कुछ सही कर देंगे या सब कुछ बेटर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेस्ट है, ऐसा नहीं है। जो प्रैग्मेटिक है, जो रियल है, उसको लाने की कोशिश कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर मार्क्स। ठीक है। मेंटेन अ सिविल सर्विस टोन, बाय दिस आई मीन्स अ प्रॉपर formal and a tone that is towards the larger public welfare. While criticizing, provide a solution oriented view. मतलब सिविल सर्विस टोन का फॉर एग्जांपल ये भी है कि जैसे हम आम जनता में जब बैठते हैं तो वील हियर कि वी आर हियरिंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि भाई ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दैट इज फाइन। बट वी एज अ सिविल सर्वेंट, आप किसी भी स्टेट में, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और या किसी भी स्टेट में जब आप सर्व करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आर जॉब इज नॉट टू जस्ट नो द प्रॉब्लम्स बट टू ऑल्सो ब्रिंग आउट सॉल्यूशंस और रिलीफ टू द पीपल. So we have to provide, while criticizing, you can put a lot of negatives in the essay, whatever you think is fine, but you have to provide solutions for that. Don't leave it just by criticizing. ठीक है, तो व्हाट आई हैव ब्रॉट इज, आई हैव ब्रॉट 5 लेयर्स इन विच वी विल डिस्कस. हम इन लेयर्स से डिस्कस करेंगे कि किन किन पॉइंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर में आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज योर बैकबोन. इट टर्न्स ओपिनियंस इनटू आर्ग्यूमेंट्स. ओके, फॉर एग्जांपल यूपीएससी टॉपिक एग्जांपल, एम्पावरिंग विमेन की टू नेशन बिल्डिंग. 2022 से ये टॉपिक इंस्पायर्ड है. केस स्टडी, cite article, we can cite article 15.3, special provision for women, and Vishaka guidelines 1997 Supreme Court judgment which led to the POSH Act, Prevention of Sexual Harassment Act 2013 against women in the workplace, against workplace harassment. This enriched topper Ira Singhal's ma'am's essay by showing how constitutional equality evolved into actionable law, प्रोटेक्टिंग मिलियंस इन द कॉर्पोरेट इंडिया. सो यू सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू, हमने आर्टिकल यूटिलाइज किया है, उसको हमने फिर कोई जजमेंट से लिंक करते हुए बताया कि कैसे एक लॉ आया. व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, इट विल, व्हेन यू आर एबल टू ब्रिंग दैट, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया, एक आर्टिकल को कोट कर दिया, बहुत सारा नहीं आपको करना है, बस 10-12 आपको आर्टिकल, 15 आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये पता होगा तो काम चल जाएगा. Mini case, for example, in rural Bihar, 33% panchayat reservation, 73rd Amendment Act में empowered the women sarpanches to reduce child marriages by 20%. ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये एक important की फैक्ट है, जैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. Similarly, data and reports को आप यूज करिए. Data isn't dry, it's dynamite for persuasion. It's dynamite for persuasion. What does it mean is, डेटा से आप अपने किसी भी पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से यार इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज गुड फॉर पॉलिटिकल सेटअप, बट व्हेन यू एज अ सिविल सर्वेंट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जस्ट से अ वन लाइनर एंड लीव. आपको बताना पड़ेगा भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो कहाँ पे है, क्यों है, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो. पॉजिटिव निगेटिव आपको दोनों देखना पड़ेगा, राइट. आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. आपको किसी फैक्ट को जब प्लेस कर रहे हो तो किसी लाइन को आप प्लेस कर रहे हो तो उसके साथ बैक कीजिए फैक्ट को, फैक्ट लेके आइए. ठीक है. यूज रिसेंट सोर्सेज टू अवॉइड आउटडेटेड इंफॉर्मेशन. एक एग्जांपल है क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया, 2013 से एक टॉपिक इंस्पायर्ड है. रेफरेंस इंडियाज एनडीसी अंडर पेरिस एग्रीमेंट एमिंग फॉर 90% नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030. COP 2026 की जो हमारी प्लेस थी, COP 26 में जो हमारी प्लेस थी. Back it up with Niti Aayog's SDG Index 2023. India's score rose to 71 out of 100, but NFHS 5 2021 reveals that 68% of rural households still uses pollution-causing fuels, causing 1.2 million premature deaths yearly as per WHO data. So when you are backing up your story with some data, with some credible source and a recent data, it will create a lot of good impact. उससे impact बहुत positive होगा. Shruti Sharma ने use this argument for just transition in coal dependent states like Jharkhand. ठीक है.
पोस्ट 2023 एक ये केस स्टडी ओडिशा से है। ओडिशा साइक्लोन पीएम उज्ज्वला योजना डिस्ट्रीब्यूटेड 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स कटिंग एमिशंस बाय 15%। ये एक सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये एक डेटा है। तो वो व्हाट सी देखिए, आई एम ट्राइंग टू पिक अप सम रैंडम डेटास एंड ट्राइंग टू लिंक अप अ स्टोरी। आपको ये आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज हाउ यू कैन यूज योर डेटा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, डेटा हो गया, अब आप हो गया हिस्टोरिकल पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए। हिस्टोरिकल पैरेलल्स मतलब हिस्ट्री इज इन पास्ट, इट इज अ मिरर फॉर टुडे। ड्रॉ पैरेलल्स टू शो द पैटर्न्स। आपको कैसे आप हिस्ट्री या हिस्टोरिक डेटा, हिस्ट्री डजंट मीन आप मॉडर्न हिस्ट्री या मतलब एंशिएंट या मिडिवल या मॉडर्न 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। आप अभी रिसेंट का मतलब आप 2024 का कुछ डेटा दिखा रहे हैं, फिर आप 2016 का दिखा रहे हैं, 2010 का दिखा रहे हैं, आप एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो हिस्टोरिकल डेटा और डेटा फ्रॉम द पास्ट इज ऑलवेज गुड, इट इज अ मिरर फॉर टुडे। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में टॉपिक आया था चैलेंजेस टू फेडरलिज्म 2021। तो इसमें देखा होगा वी कैन इन्वोक सरकारिया कमीशन 1988 दैट रिकमेंडेशंस ऑन सेंटर स्टेट बैलेंस के, इसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। पैरेलल विद द जीएसटी रोल आउट इन 2017 डिस्प्यूट्स, एग्जाम्पल तमिलनाडुज रेवेन्यू लॉस क्लेम्स जो वो कर रहे हैं, वो उसको आप यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के ऊपर सरकारिया कमीशन ने ये सब चीजें बोली हैं, ठीक है। इको नेहरूज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस इंदिरा गांधीज इमरजेंसी एरा सेंट्रलाइजेशन इन 1975 व्हिच इरोडेड ट्रस्ट। सो अगेन, तो आप जैसे इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो आप नेहरू को यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कीजिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से उस एरा से ड्रॉ कीजिए, या इमरजेंसी से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी और हिस्टोरिकल में सिर्फ इंडिया से सीमित नहीं रखना है, आप कहीं बाहर से भी या दूसरे कंट्री से भी उसको पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। For example, Junaid sir in link this to COVID-19 vaccine distribution friction highlighting fiscal federalism's evolution। तो देखिए आप कैसे टॉपर्स ने आपको रियलाइज होगा कैसे उन्होंने टॉपर्स ने ये सारे रिपोर्ट्स को या किसी बात को हिस्टोरिकल चीज़ को कैसे लिंक करके प्रेजेंट सिनेरियो में या प्रेजेंट डे जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे लिंक करके उन्होंने एक बेटर ऐसे लिखा है। For example, post-partition 1947, Sardar Patel's integration of princely state set the federal template, now strained by farm laws protest in 2021. Again, so there are a lot of possibilities that you can use. The fourth layer can be literary or cultural. Culture adds souls. Use it sparingly for elegance, not to overload. Okay. UPSC topic example, for example, we have taken the role of education in society. We can quote Rabindranath Tagore's where the mind is without fear and the head is held high, embodying NEP's 2020 focus on holistic fear and free learning. तो NEP को कैसे NEP को कैसे आप लिंक कर सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, तो ये एक लिटरेरी या कल्चरल आप लिंक कर सकते हैं। संस्कृत के प्रोवर्ब से आप लिंक कर सकते हैं, विद्या ददति विनय, तो इसमें आप जैसे नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी, कॉन्ट्रास्टिंग रोट लर्निंग इन इंडिया, इसको आप रोट लर्निंग के अगेंस्ट आपको बोलना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्हेनेवर यू आर यूजिंग संस्कृत का कोट या हिंदी का कोट, एंड संस्कृत और हिंदी इज नॉट योर मीडियम ऑफ लैंग्वेज, आप उसको हमेशा ब्रैकेट में विच मीन्स करके उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, बिकॉज द एग्जामिनर हु इज इवेल्युएटिंग माइट नॉट नो हिंदी वेल। तो आपका कोट या संस्कृत वेल, तो आपका जो आपने वर्ड्स यूज करें दैट माइट नॉट बी लिविंग दैट मच इम्पैक्ट। Okay, Pradeep Singh wrote that in Mahabharat Eklavya story to critique unequal access, urging inclusive reforms. So see, देखिए inclusive reforms और unequal access to resources को लिंक किया है एकलव्य की स्टोरी से। So you see how we can draw parallels if we have right थिंग इन आवर माइंड। अगर हम सोच के चलें, अगर हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें ऐसे इसके बारे में, 10-20 मेजर थीम्स को हम प्रिपेयर कर लें, तो यू विल थिंक कि कैसे हम इसको एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है. मिनी केस गांधीज नई तालीम, यू कैन मेंशन बेसिक एजुकेशन इंस्पायर्ड कम्युनिटी schools in Rajasthan, boosting literacy rate from 38% to 76%. Okay, so again I am trying to just give you some case studies and all, some examples that that can be used. Fifth layer can be global or contemporary. Go global to show India's place in the world, timely and forward looking. UPSC topic example, digital divide in India 2024 inspired. Compare Estonia's 99% digital services e-residency model with India's UPI boom. 13.9 billion transactions in September 24 as per NPCI data. This is much more now as per current data in 2025. Yet ASER annual survey of education report 2023 shows 40% rural students lack internet. So 40% of our students in the rural areas do not have proper internet services even today. Imagine जब उनके पास इंटरनेट होगा, दे कैन, फॉर एग्जाम्पल, दे ये जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं, दे कैन फ्रीली लुक, दे उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं. वो भी कल के लिए यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन के लिए या बाकी सीजीएल के लिए बहुत सारे अलग अलग पेपर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, राइट. At G20 2023, PM Modi's One Earth, One Family pushed digital public infrastructure, that is India's CoWIN app, and shared it with 50 plus countries. Okay, तो एग्जाम्पल है जिसको आप यूज कर सकते हैं. हाउ ग्लोबल, हाउ सम स्टेप्स कैन बी लिंक टू ग्लोबल वेलफेयर. ओके, topper Aditya Srivastava used this advocate bridging urban rural divide gaps via BharatNet infrastructure. Okay, post COVID, Singapore's Skill Future program upskilled 500,000 workers. India can adopt for AI jobs via NSDC. So see, I'm just trying to give you some snippets that can be used by you. ठीक है, हमको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये 5 मेजर थीम्स में बात करके आप अपनी ये 5 मेजर थीम्स में आप बात करके अपने ऐसे को एनरिच कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, डेटा हो गया, हिस्टोरिकल पैरेलल्स हो गए, ग्लोबल एंड कंटेम्परेरी हो गए, और इससे पहले जो हमने देखा है, सॉरी, लिटरेरी और कल्चरल हो गया. ये 5 एक मेजर पॉइंट है. इसके अलावा आपको मैंने बता दिया है कि आप इन चीज़ों को जब ध्यान में रखेंगे तो इट कैन बी अ बिट ईजियर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. पैराग्राफ इंप्रूवमेंट तो एक बहुत बड़ा इशू मैंने देखा, ये मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ. पैराग्राफ का लेंथ आप प्रॉपर रखिए. पैराग्राफ और सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैव अ डिसेंट साइज सेंटेंस. एक डिसेंट साइज सेंटेंस में 10-12 शब्द हो सकते हैं, किसी में 15 भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि एप्पल इज रेड फिर डॉट फिर 3-3 4-4 वर्ड का सेंटेंस लिख रहा है. दैट इज नॉट राइट. सेम गोस फॉर पैराग्राफ्स. प्रॉपर पैराग्राफ से एक फ्लो बना रहेगा. आपसे फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट यूज पॉइंट्स और चार्ट्स और मैप्स इन एसेज. नो, एसेज आर सपोज टू बी डिस्क्रिप्टिव. आप उसको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है. सिंपल है, आपको सिंपल पैराग्राफ्स यूज करने हैं. यू कैन यूज हेडर्स, आप हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, दैट इज फाइन. हेडिंग्स आप मेजर 5-7 हेडिंग आप यूज कर सकते हैं. 1-2 सब हेडिंग्स भी यूज करते हैं. इफ योर मेजर थी, आपका कोई हेडिंग बहुत बड़ा जा रहा है तो आप उसमें 1 या 2 सब हेडिंग भी यूज कर सकते हैं. बट आइडली 5-7 मेन हेडिंग्स में आपका काम चल जाएगा. ठीक है, डिसेंट लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स, प्लेन स्टेटमेंट्स, कीप इट सिंपल. डू नॉट ट्राई टू ओवरलोड इट विद टू मच इंग्लिश या टू मच हिंदी या टू मच संस्कृत. सिंपल रखिए. You for use examples, quotes, logical flow रखिए. use SEE method, that is state, explain and example. कोई चीज state कीजिए, आपने कुछ लिखा, उसको explain करिए. what do you mean by कि for example India has a high level of unemployment. what do you mean by that? when you say are you meaning formal employment, that you have to mention. थोड़ा इसका explain कीजिए. and most importantly example, justify it. दैट इज वॉट. अगर आपने एनरिच कर रखा है ऐसे तो आप उसको जस्टिफाई जरूर करेंगे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. कॉमन मिस्टेक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. मिसिंग कोर डिमांड, दैट इज वेरी अर्जेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप टॉपिक ऐसा सिलेक्ट कीजिए प्लीज जिसको आप 100% समझ पा रहे हैं. यू डू नॉट
choose a topic wherein you are not very sure of what to write. आप जब तक आपने जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन का थीम तैयार किया है, विमेन का थीम तैयार किया है, टॉपिक कुछ एजुकेशन पे ऐसा आया दैट यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ, इन दैट सिनेरियो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि आपने एजुकेशन ने आपने प्रिपेयर कर रखा और एजुकेशन का टॉपिक आपको समझ में नहीं आया और आप एजुकेशन के बारे में सब कुछ देख के आ गए, तो डजेंट मीन आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। आपको टॉपिक का क्रक्स या कोर डिमांड, जब हम अभी इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आई हैव टेकन रेदर सिंपल टॉपिक्स जो बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी से प्रीवियस ईयर से मिला के मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, 10-12 थीम्स तैयार किए हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा। तो कोर डिमांड कभी मिस नहीं करनी है, ऑलवेज ट्राई टू स्टे इंटैक्ट विद द क्लोज कोर डिमांड। ओके, डोंट ओवर यूज फैक्ट्स फिलोसफीज, थिंकर्स को फैक्ट्स को 5-7 ठीक है, 4-5 को ठीक है, 4-5 से ज़्यादा नहीं। फिलोसफर्स 1-2-3 मेंशन कर दिए दैट इज फाइन, ये नहीं कि 8 फिलोसफर्स मिस कर दिए, एज पर गांधी, एज पर प्लेटो, जितने मैंने 10-12 लिखे हैं आप सब यूज कराए, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। रिपीटिशन ऑफ आइडियाज मत कीजिए, ignoring language, don't try to be too smart with your language. You can be you can have good articulation to make it feel attractive, but हर जगह ओवरलोड करने की जरूरत नहीं, सिंपलिसिटी सिंपल रखिए, बट आपका मीनिंग डीप होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पुअर पैराग्राफ फॉर्मेशन ये सब अवॉइड कीजिए, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैड इन माय माइंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो नेक्स्ट सेशन will be about themes. So what we are doing now is we'll start with individual themes. हम एक एक थीम को पिक करेंगे और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले हमने आई हैव टेकन द थीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कौन कौन से टॉपिक्स टेक्नोलॉजी या साइंस से रिलेटेड पिछले 5-7 सालों में पूछे गए हैं, तो मैंने कुछ स्टेट सर्विस कमीशन और यूपीएससी से कंबाइन करके वो टॉपिक्स निकाले हैं। अब ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर विमेन है, फिर चिल्ड्रन है, फिर हेल्थ है, फिर एजुकेशन है, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर है, एआई है या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआईएम, मशीन लर्निंग, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग एक टॉपिक है। सिमिलरली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऐसे करके मैंने 12-14 टॉपिक को पिक किया है अभी स्टार्टिंग में, और हर सेशन में मैं 5 से 10 मिनट आपको 15 मिनट में वो कवर करने की वो कोशिश करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम ये सेशंस को लेंगे तो आप उसको प्रॉपरली जॉट डाउन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको सेशन को 2-3 बार देखना पड़ेगा, आपको उससे वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको याद हो जाएगा। until you are able to revise it 5 to 10 times you won't be able to produce it in the exam। आप एग्जाम में लिख ही नहीं, आपको याद नहीं आएगा। हाँ, आप ये सेशन देख रहे हैं, आपको 5 एंकर मैंने बताया, अगर आपने 4-5 बार नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि यार आर्टिकल भी लिख सकता था मैं, या आपको कुछ डेटा भी लिख सकता, मे भी डेटा याद आ जाएगा, कोट याद आ जाएगा, हिस्टोरिकल पैरेलल्स याद नहीं आएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। once again that is what I had in my mind in this session। thank you very much। आप लोगों ने बहुत बढ़िया फीडबैक कई लोगों का आया है। आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस इन माई सेशंस। आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको क्या थीम्स, मैं थीम्स कुछ दिखाऊंगा। फिलोसफिकल एसेस डोंट वरी, आई विल टेक इट सेपरेटली। once these major themes are completed I'll take into philosophical essays, फिर I can be live on some days wherein I can take up some of your questions as well। ठीक है, तो that is what was from my end। thank you very much।